Okay. We have discussed the sequential reactions and parallel reactions. Now it is time for us to discuss the equilibrium reaction, first order equilibrium reactions. Okay. Uh, the chemical equilibrium reaction के अंदर में if I have to write the rate of change of concentration of A with respect to time, uh, the equation is going to be like uh, obviously we are assuming here a broader case of first order reaction का. So it is going to be concentration of A into forward rate constant. Is it okay? Concentration of A into Are you forward. presenting your screen? I can't see your screen. I can see your home screen laptop. Oh, is it visible now? Yes. Yes. Oh, okay. Uh, so chemical equilibrium reaction. A is getting converted to B. Forward rate constant is K. The backward rate constant can either be written as Kb or K1 and K minus 1. K1 फॉरवर्ड को और k minus 1 backward को लिखते हैं kf के लिए. So it is going to be k forward into concentration of A, right? The rate of reaction or rate of change of reaction is equal to kf, the forward rate constant, into concentration of reactant or concentration of reactant to the power of or to the power of order of the reaction. यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम अज्यूम कर रहे हैं. मैंने सब ब्रॉडर केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली वो शुरू में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर बी मोर क्लियर. सो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा that is going to be kf, I mean rate of the reaction is going to be equal to kf into A, and the same time sorry it's minus kf into A. जितना A है प्रेजेंट और उसके प्रोपोर्शनल अमाउंट में the rate of decomposition of A will be or rate of consumption of A will be. ठीक है. और दूसरी तरफ से रिवर्स रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो B वाला जो एंटिटी है ये भी कन्वर्ट होकर के A में फॉर्म हो रहा होगा. मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे there are going to be two things happening. कुछ A का मॉलिक्यूल्स B में कन्वर्ट हो रहा होगा और कुछ B का मॉलिक्यूल्स A में कन्वर्ट हो रहा होगा. तो A के जो मॉलिक्यूल्स B में कन्वर्ट हो रहे हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस काउंट ऑफ A पार्टिकल्स, एंड B का जो एम है
ए का जो बी में कन्वर्ट हो रहा है वो ए के पार्टिकल काउंट के प्रोपोर्शनल होगा, और जो बी का ए में कन्वर्ट हो रहा है वो बी के पार्टिकल काउंट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और इधर से बी से ए का फॉर्मेशन हो रहा है, ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ए वाला कंटिन्यूअसली कंज्यूम हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है उसका। अगर हम रिएक्शन इस रेट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज के लिए देखें, this is the consumption rate, and there will be a formation rate, and formation rate will be equal to kb into concentration of E। ठीक है, सो मान लो मतलब कहीं पर भी आपको रेट इक्वेशन फॉर्म करना हो तो आप दो चीजें ध्यान देंगे। ठीक है, पहला चीज, व्हाट इज योर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन of A and this is the rate of consumption of A, और ये होगा क्या हमारा नेट रेट ऑफ concentration of, is this thing okay? Yes, sir. और ये हमेशा आपको सोचना है, इट्स नॉट लाइक इट इज ओनली वैलिड फॉर दिस केस। जहां पर भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आएंगे ना मैकेनिज्म वगैरह सॉल्व करने के लिए, भी इसके बाद मैं डिस्कस करना चालू करूंगा, तो वैसे हर सिनारियो में दिस इज समथिंग जो कि हमको कंसिडर करना है। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना, और रेट ऑफ कंजम्पशन हमेशा नेगेटिव, रेट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा पॉजिटिव, और दोनों का नेट जो होगा दैट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ E। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और वर्कआउट कर लेते हैं। वर्कआउट क्या रहेगा कि if initial concentration of A naught, concentration of A naught is equal to concentration of A plus concentration of, what does this mean? It simply says, इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि if A and B are interconvertible and at the beginning of reaction I have taken suppose 100 molecules of A, so at any time during the reaction, this is a first order reaction with stoichiometry 1:1, तो total molecule जो रहेगा उसका काउंट हमेशा 100 रहेगा। Is it okay? If the stoichiometric coefficient is 1, तो अगर शुरू में A का हमने 100 मॉलिक्यूल लिया है तो किसी भी टाइम पर A और B के मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे, इट शुड ऐड अप टू 100।
एक ए से एक बी बन रहा है, राइट? इज दिस ओके? और इससे हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसको, दैट इज concentration of B is equal to concentration of E naught minus इसको मैं अपने इस इक्वेशन के अंदर में put up करूंगा, then I'll try to solve the equation. E and B क्या है?
Sorry. Okay. So dA by dt is equal to minus kf kf plus kb into concentration of A plus kb into concentration of E naught. That has come by rearranging this particular term. And now in order to integrate this, we are multiplying both sides of this equation by e to the power kf plus kb into E. This is a general method of integration which you will learn while solving differential equations chapter in maths. This is called integration using or solving differential equation using integration factor, integrating factors. Okay? So here this particular thing is actually an integrating factor. This is known as IF. Okay? So इसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया मैंने e to the power kf plus kb and obviously next step में I'm going to integrate it. Integration के time पर what I'm getting is एक तो मैं लिमिट्स डाल करके कर सकता हूँ और दूसरा बिना लिमिट डाले हुए मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल की तरह इनको कर सकता हूँ और फाइनली एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लूंगा. ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्चुअली लिमिट्स डाल के किया है और इसको और लिमिट्स में बेसिकली टाइम t इज इक्वल टू 0 पर 0 से t एंड यहाँ पर भी 0 से a एंड t जनरल टाइम t पर कंसंट्रेशन इज हेलो. हाँ, see, after rearranging the terms, we are multiplying it both side by e to the power kf plus kb into t, the integrating factor. और डिफरेंशिएशन से एक्चुअली इस वाले स्टेप को मैं बहुत ट्विस्ट मैनर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ या फिर ये समझ में आ रहा है इससे ये कैसे ये स्टेप से ये वाला कैसे फॉर्म हो रहा है. आर यू गाइस गेटिंग इट? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर. ठीक है, से बाद में जो चीज ले रहा हूँ मैं अब गो बैकवर्ड एक्चुअली e टू द पावर a प्लस ए बी इंटू टी अगर है इसको डिफरेंशिएट करता हूँ assuming this as a variable and this as another variable. पहला वाला term जो होगा that is going to create this and it will be multiplied by the second term taking it as a constant kf plus kb into e and assuming this as a constant now it will become a into differentiating this with differentiating this one we are going to get kf plus kb e to the power kf plus kb into b. ये वाला पार्ट कॉमन है एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक. ये वाली चीज जनरेट करने के लिए हमने kf e to the power kf plus kb into t से
दोनों साइड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। नाउ जस्ट कंपेयर दीज टू थिंग्स। इसको इधर कॉपी कर देता हूँ। ये यहाँ से ये डिफरेंशिएट हो गए कैसे बन रहे हैं ये समझ में आ रहा है हम लोगों को। हेलो, Yes, sir. ठीक है। सो बेसिकली ये वाला फॉर्म जनरेट करने का, और इससे यहाँ पर डिग्री भी रहेगा, ये वाला फॉर्म जनरेट करने के लिए हमने पिछले वाले स्टेप में दोनों तरफ ये रीअरेंज करने के बाद दोनों तरफ यहाँ पे दोनों तरफ हमने e टू द पावर kf प्लस kb इंटू t से मल्टीप्लाई किया और फिर टर्म्स को रीअरेंज किया सच दैट DA वाला टर्म एंड कंसेंट्रेशन A वाला टर्म एक तरफ आ जाए। उन दोनों को एक तरफ कलेक्ट करके हमने ये चीज क्रिएट कर ली एंड टाइम 0 से t के बीच में इसको इंटीग्रेट कर लिया। 0 से t पर इंटीग्रेट किया, आई मीन लिमिट्स डाल के इंटीग्रेट कर सकते हैं एक चीज, और एक बिना लिमिट डाले हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोनों की वैल्यूज को मैंने दोनों ही तरीके से करके देख लिया। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t, और यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ ए कॉमा 0 से कंसेंट्रेशन ऑफ ए कॉमा टी। ए नॉट से ए नहीं जाएगा, इट्स ए टू 0 टेकिंग टी एज द ओनली वेरिएबल। हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर जनरल इक्वेशंस क्रिएट करता हूं मैं तो इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। ये वाला इंटीग्रेट होकर के बनेगा इस तरह से एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं तो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय kf प्लस kb divided by kf plus kb into e to the power this kf plus kbt plus c हो रहा है। टाइम t is equal to 0 अगर मैं रखता हूँ तो this term will become 1, this term will become 1. So c की वैल्यू जो है that is going to come out to be a minus kb by kb plus kf into a naught, ठीक है। ये टर्म को अगर c के बदले में मैं रिप्लेस करता हूँ तो ये this term is same as this term, so basically ये वाला पार्ट हमारा जनरेट हो रहा है और इधर a जो है प्लस में है, ये दूसरी तरफ शिफ्ट होकर के आ रहा है तो माइनस a जनरेट हो रहा है। इनिशियली मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, दैट इज व्हाट आई ट्राई टू करेक्ट इट बाय दिस, ठीक है। सो a नॉट को मैंने लाइक इनिशियल जब मैंने किया था तो यहाँ पर a नॉट लिखा था, दैट आई रिप्लेस विद a, taking, I mean यहाँ पर we are just considering that time is a variable and time के according हम इसको ये कर रहे हैं, we are trying to solve it as per that, ठीक है। Next page पर I'm just carrying it forward on next page after integration to rearrange the terms. ये इसको actually copy paste है, so I have to write it, ये a not otherwise रह जाएगा, into the power kf plus kb into t minus concentration of t. I'm not doing anything, I'm just copying the last step so that kb into concentration of t naught kf plus kb multiplied by e to the
power plus AB minus 1. I'm recollecting the terms, these terms. यहाँ से इसको राइट साइड लेकर के आ रहा हूँ और इधर ये जो प्रोडक्ट वाली चीज है उसको लेफ्ट साइड लेकर के आ रहा हूँ. I'm generating this thing and इसको सॉल्व किया मैंने, माइनस किया. आई एम गेटिंग KB माइनस दिस. यहाँ पर एक माइनस साइन है, माइनस साइन को मैंने इस तरफ राइट हैंड साइड में एब्जॉर्ब कर लिया. तो आई एम गेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए. ये रिवर्स हो जाएगा साइन चेंज होने के बाद, निगेटिव साइन आने की वजह से. ए माइनस के बी कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ के एफ प्लस के बी. ठीक है. एंड ई टू द पावर के बी प्लस के एफ इंटू टी. फर्दर इन दोनों को डिवाइड किया मैंने और ये एंड सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ अगर मैं एल एन ले लेता हूँ तो आई विल गेट अ much simplified equation and it is going to look something like this. Obviously ये काफी टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है अभी हम लोग को, but it's not that. 2 मिनट में इसको मैं सॉल्व करके फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ. एनीवे इसको मैं अगर कुछ इस तरीके से लिखता हूँ तो ये डिनोमिनेटर में से ये कैंसिल हो जाएंगे. दिस विल बिकम KF प्लस KB into concentration of E minus KB into इसका ln is equal to KB plus KF into T. ठीक है. And let us do one more thing. हमने A और B का एक इक्वेशन लिखा था. So it was like this dA dt is equal to minus KF concentration of A plus KB into concentration of B. ठीक है. Where B was equal to AB was equal to concentration of A naught minus concentration of B. ठीक है. एक चीज यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट सेट में ऐड करूंगा and we will be able to solve it in a different way. The point is reaction हो करके after मतलब और finite number of time elapsed होने के बाद the equation will be or the reaction will be in equilibrium, will finally come to equilibrium, right? Come to equilibrium after time. ठीक है. इक्विलिब्रियम पर आ गया तो नेट रेट ऑफ चेंज हमारा क्या रहेगा? At equilibrium, net rate of change of A will be net rate of change of
A will be how much? At equilibrium, what will be the net rate of change of A? इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ E क्या होगा? The concentration of A का change, will there be any or will there be not? इक्विलिब्रियम पर A के कंसंट्रेशन में कोई चेंज होगा या नहीं होगा? हेलो, हाँ 2 मिनट्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्या होगा एट इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन चेंज होते हैं क्या ऑफ आइदर स्पीसीज इक्विलिब्रियम फॉर्म होने के No, बाद? sir. नो। सो नेट रेट ऑफ चेंज विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0। अब ये जब 0 होएगा, these A's are going to be termed as A equilibrium और ये इनिशियल है, so it will simply become Kf minus Kf A equilibrium 0 is equal to this into A equilibrium plus Kb into A naught minus Kb into A equilibrium और Kb A naught is equal to, इसको लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे Kf प्लस Kb into A equilibrium और Kb A naught by Kf plus Kb is equal to A equilibrium, A का concentration at equilibrium. Now ठीक है, अगले लेक्चर में मैं 10 मिनट और लूंगा इसको कंप्लीट करने के लिए. This is something which is going to simplify our previous equation. ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए दिस इज द टूल विच आई एम गोइंग टू यूज, और ये वाला टर्म जो है वो डायरेक्टली ए इक्विलिब्रियम हो गया, ए इक्विलिब्रियम, ठीक है, दिस इज ए इक्विलिब्रियम, और इधर है इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये जो है kf by kb, kf by kb into a equilibrium है. This thing is kf by kb, kf by kb into a equilibrium, ठीक है, और इस तरीके से हमारी चीजें a equilibrium के टर्म्स में सिंप्लीफाई हो जाती है. It becomes very simple. दूसरा तरीका जो होगा इसका वो ये होगा कि मैं शुरू से अगर अज्यूम करके चलूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ E इज A नॉट, इनिशियली ये 0 है, A में से x अमाउंट जो है वो डिक्रीज हुआ और इधर x अमाउंट फॉर्म हुआ, और वो x के टर्म में सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम मच इजियर. वो वाला मेथड भी मैं कल शो करूंगा एंड वी विल सी दैट the relationships are exactly the same, इस तरीके से या फिर उस तरीके से, ठीक है. अब ये करने के पीछे कुछ रीजन है. यहाँ पर मैंने लाइक ये जो assumption किया है ना, this is called steady state assumption and this is something which we are going to use in our next section very frequently. पहले steady state approximations बताऊंगा एक बार formally and then we are going to use it in order to derive the rate equation for और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, मैकेनिज्म के हिसाब से रेट डिराइव करना एंड वो सॉल्व करना, दैट इज समथिंग व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेक्शन. जिसका बैकग्राउंड ये सॉल्यूशन से हमने डेवलप, ठीक है. तो इसमें दो मेथड्स में डेवलप, पहला एक बताया मैंने अभी और एक कल फिर मैं डिस्कस करूंगा कल के लेक्चर में, ठीक है. All Okay. right. Thank you. ओके, बाय.